हेलो बच्चों, मैं टीएस धाकड़। आप सभी अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप बेसिक देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से, बच्चों से फर्स्ट कंडीशन में आपको यही एक्सप्लेन करता हूं कि फिजिक्स में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही फिजिक्स आपको इंटरेस्टिंग और सिंपल होगा। मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है कि फिजिक्स से सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। बस आपको हार्ड वर्क करना है, रूटीन वे में वर्क करना है और इसको बेसिक जो आपका है उसको स्ट्रांगली बिल्डअप करना है। उसके लिए प्लेटफॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फिजिक्स के लिए प्रैक्टिकली थॉट्स आप डेवलप करें, प्रैक्टिकली सोचें। आपके घर में, स्कूल में, रोड पर, गार्डन पर, ऑल पॉसिबल कंडीशंस में फिजिक्स अवेलेबल है एंड एप्लीकेबल है। तो प्रैक्टिकली सोचिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जेक्ट है ये। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा। इसका बेसिक हम किस ढंग से स्ट्रांगली तैयार करेंगे वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेंस, एडवांस, नीट वो क्वेश्चन आप इजीली गोइंग सॉल्व करेंगे और उसके लिए 95% of given question in your mind, remaining 5% on paper. That's clear. Let's see. Electrostatics, in which we study of electric charge and electric field. इसमें आप इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करेंगे। इनिशियली मैं आपको चार्ज के बारे में बहुत ही ब्रॉड फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स electrostatics, you know that electrostatics, it consists with electro plus statics. Okay, electro means, meaning of electro, charge. Statics means rest. Statics means rest. The meaning of electrostatics, charge at rest. Charge at rest. So that it is a branch of physics. It is a branch of physics in which we study of charge at rest. ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम चार्ज का स्टडी करेंगे और वो चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। इन दिस चैप्टर, होल चैप्टर हम चार्ज का स्टडी करेंगे और वो चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। ओके, अगेन लिसन टू मी। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ चार्ज एट rest. Many physical quantities like electrostatic force, electric field, electrostatic potential, electrostatic potential energy, इन सभी का स्टडी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे because these quantities are developed by stationary charge. Okay, in electrostatics we also study of electrostatic force, electric field, electrostatic potential and electrostatic potential energy, etc. because these quantities are developed by stationary charge. That's clear. Next, देखिए बेटा, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। तो इलेक्ट्रो का मीनिंग चार्ज से कैसे होता है वो चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो नाउ वी स्टडी इलेक्ट्रिसिटी when two bodies are rubbed with each other, when two bodies are rubbed with each other, when two bodies are rubbed with each other, then exchange of some electron between them due to friction. So one body, any one of two body, electron lose होंगे, another body electrons gain करेगा, like HCl. You know that H plus Cl minus, it is possible when one electron lose by hydrogen atom and one electron gain by chlorine atom, H plus Cl minus. Similarly, when two bodies are rubbed with each other,
then exchange of some electron between them due to friction. Due to friction, we say that a body acquires some positive charge. बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. सिमिलर टू हाइड्रोजन, दिस बॉडी गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. मींस both bodies are electrified. Both bodies are electrified. This phenomena is called electricity or friction electricity. Friction electricity because ये complete process किससे generate हुआ है? friction से. Okay बेटा. When two bodies are rubbed with each other, then exchange of some electron between them due to friction. We say that a body acquires some positive charge, another body acquires some negative charge. So both bodies are electrified. This phenomena is called electricity or friction electricity. Next, the electricity is developed. The electricity is developed due to friction. The electricity developed due to friction. So electricity is also called friction electricity. Friction electricity. Practically देखिए बेटा, आपने हमने सभी बचपन में करते हैं. When a comb playing over your hair, in this condition a force of friction which comes into play between comb and hair. Now comb near to the small paper foils को attract करेगा. In simple way, अगर हम कंघी करते हैं तो हमारी कंघी और हेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा. फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू दिस फिनोमेना, चार्ज डेवलप होगा. कंघी को हम स्मॉल पेपर फॉइल्स के नजदीक ले जाएं तो पेपर फॉइल्स को अट्रैक्ट कर लेता है. बिकॉज कॉम्ब पर चार्ज डेवलप हुआ, इलेक्ट्रीफाइड हुआ, तो पेपर फॉइल्स को वो अट्रैक्ट करेगा. मींस द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ड्यू टू फ्रिक्शन. So electricity is also called friction electricity. Okay beta. Next, the property of rubbed substance, due to which they attract small objects like paper foils is called electricity or friction electricity. देखिए बेटा, तो देखिए इनिशियली मैंने आपको एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंसिस्ट विद इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक्स फ्रॉम 11th क्लास रेस्ट. इलेक्ट्रो के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रिसिटी. अब न्यू फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने क्या आ गया बेटा? चार्ज. क्या आ गया? चार्ज. तो नाउ वी स्टडी चार्ज. देखिए बेटा, चार्ज. तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा फिजिक्स को अच्छे से बिल्डअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकली थॉट डेवलप कीजिए, प्रैक्टिकली सोचिए. चार्ज का मीनिंग क्या है? जैसे कॉम्ब वाला मैंने एग्जांपल किया. आप कंघी करते हैं तो हेयर स्टाइल आपका ही तो बनेगा भैया, हेयर स्टाइल आपका ही बनेगा. ऐसा थोड़ी है कंघी आप कर रहे हैं हेयर स्टाइल पड़ोसी का बन जाए, तो ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी. पड़ोसी जब भी घर से बाहर निकलने लगेगा आप उसका हेयर स्टाइल डिस्टर्ब कर दोगे, बेचारा बाहर ही नहीं निकल पाएगा. तो इसमें फिजिक्स क्या है? आपने कंघी की तो हेयर स्टाइल आपका बना. मींस आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसका यूज, एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगा. दिस कंडीशन इज कॉल्ड इन फॉर्म ऑफ फिजिक्स फंडामेंटल. क्या? फंडामेंटल. तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. और प्रैक्टिकली डिस्कशन करें, जैसे आपकी बात करें, यू आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, यू आर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ योर पेरेंट्स. भाई आपका जो भी फेस स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, वॉकिंग स्टाइल है, टॉकिंग स्टाइल है, किससे मैच करेगा? आपके पेरेंट्स से. बिकॉज यू आर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ योर पेरेंट्स. हमारा फेस स्ट्रक्चर पेरेंट्स से ही तो मैच करेगा. दैट्स क्लियर. तो मींस आपने कंघी की तो हेयर स्टाइल आपका बनेगा. इसे फिजिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है फंडामेंटल. मींस चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. Charge is a fundamental property of material. Electric charge is a fundamental property of material. Another second statement हम क्या दे सकते हैं बेटा? देखिए, you know that हाइड्रोजन का करेक्टर क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन लूज करना. क्लोरीन का करेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन रिसीव करना. तो चार्ज मटेरियल के करेक्टर को शो करता है.
अब मैं प्रैक्टिकली डिस्कशन कर लेता हूं। कॉम्ब, कंघी वाला मैंने एग्जाम्पल लिया। आप सुबह उठे, सुबह तैयार हुए, आपने कंघी की, स्कूल चले गए, स्कूल से घर वापस आ गए, ऑल डे, दिन भर आपने अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड वर्क किया, तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स सभी खुश रहते हैं कि हमारे बच्चे का सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में फोकस है, अनदर एक्टिविटीज में कोई भी फोकस नहीं है। तो इस कंडीशन में पेरेंट्स एंड टीचर्स तो खुश रहेंगे, लेकिन पड़ोसियों के पेट में दर्द हो जाता है कि यार उस बच्चे को देखिए, शर्मा जी के बच्चे को देखिए, वो पढ़ाई में बहुत ध्यान देता है। तो पड़ोसियों के बच्चे विदाउट रीजन उनकी पिटाई हो जाती है बाय पेरेंट्स कि नालायक, शर्मा जी का बच्चा कितना फोकस करता है पढ़ाई में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पढ़ाई आप कर रहे हैं, पिटाई उसकी हो रही है। अब इसी को रिवर्स सोचें, आप सुबह उठे, बहुत से बच्चे मैनी टाइम्स, दिन में कई बार कंघी करते हैं, कभी 90 डिग्री से, कभी 60 डिग्री से, कभी 45 से, कभी 30 डिग्री से, कभी 0 डिग्री से, कभी 180 डिग्री से, बहुत से तो 360 से भी करते हैं पीछे से। तो ऐसी कंडीशन में पड़ोसियों के घर में मिठाइयां बढ़ जाती हैं। जब लेडीज इवनिंग में दूध लेने जाती हैं तो पूरे कॉलोनी का कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिटेड हो जाता है। लेडीज का कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, जियो फाइबर से भी एडवांस होता है। हमें पता हो या नहीं पता हो, लेकिन पूरे मोहल्ले में ये पड़ोसियों को पता रहता है कि किस घर में क्या चल रहा है। तो वो लोग बात करेंगे कि उस बच्चे से दूर रहना, अपने बच्चे को उस बच्चे से दूर रहना, वो बहुत नालायक है। कुछ लेडीज तो यहां तक, कुछ पेरेंट्स तो यहां तक कह देंगे उस बच्चे से अपने बच्चे को दूर रखना, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। चाल चलन को हम कहते हैं करेक्टर, और करेक्टर से फिजिक्स का वर्ड बनता है करेक्टरिस्टिक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के करेक्टर को शो करता है। लाइक हाइड्रोजन का करेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। क्लोरीन का करेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना। तो चार्ज मटेरियल के करेक्टर को शो करता है। जैसे आप देखें, आपकी बात करें, आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, आपका करेक्टर फिजिक्स को रिसीव करना है, फिजिक्स को एक्सेप्ट करना है, फिजिक्स को गेन करना है, फिजिक्स को लर्निंग सीखना है, फिजिक्स को जानना है। अनदर स्ट्रीम के बच्चे को, चलो बेटा, या अपने साथी फ्रेंड से आप कहते हैं अनदर स्ट्रीम का बच्चा है, धाकड़ सर की क्लास में चलते हैं, तो वो फिजिक्स का नाम सुनते ही आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसका करेक्टर ही नहीं है फिजिक्स को गेन करना। लेकिन आप उसको किसी लालच से आप उसको 500 रुपीज दे दीजिए, इस चक्कर में वो आ जाएगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10 मिनट्स उसके माइंड का टेम्परेचर हाई हो सकता है, क्योंकि उसका करेक्टर ही नहीं है फिजिक्स को एक्सेप्ट करना। टेम्परेचर हाई होगा तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट नगर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां क्या है, मेंटल हॉस्पिटल है। अगर फिर भी उसका टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं आया तो आगरा में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा आगरा में ही है। मीन्स दैट चार्ज मटेरियल के करेक्टर को शो करता है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। दैट्स क्लियर। नाउ अब देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ चार्ज, they are of two types. First, positive charge. Second, negative charge. That's clear. From example, HCl, H plus Cl minus, you know that valency of hydrogen +1, valency of chlorine -1. According to physics, charge on hydrogen atom positive, charge on chlorine atom negative. Means that types of charge, they are of two types, positive charge and negative charge. Okay बेटा, देखिए आपको मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। when two bodies are rubbed with each other then exchange of some electron between them. इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ चार्ज between two bodies is always in term of electrons. तो देखिए बेटा, फाइनल टच पॉइंट्स, एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए बेटा, चार्ज डिनोटेड बाय क्यू, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, इन स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, इन सबस्क्रिप्ट क्यू मींस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, it is also denoted by E.
its numerical value 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Sure, negative. Me mass of electron, its value 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. Both are standard amount. Scientist ने research की, gives by scientist all over world without any reason, without any question, without any confusion, accept करता है. लेकिन टीएस धाकड़ क्लास में आपको किसी भी चीज को मेमोराइज फैक्टर अप्लाई नहीं करना है. अभी आप समझिए, अभी नोट करिए और भूल जाइए. टुमारो क्लास, नेक्स्ट क्लास में ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और वो कैसे सेट होगा, किस तरह सेटअप करना है, वो मेरा काम है. दैट्स क्लियर. तो स्मॉल ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ई माइनस आप ब्रैकेट में ऐसे अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स क्लियर बेटा. तो एक्सचेंज ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसी चीज को आपको पूछ लिया जाए व्हाई, एक्सप्लेन इट, तो इसके लिए मैं सम डीपली कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स आपको बताऊंगा. एक्सप्लेन एक्सचेंज ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाई. तो इसके लिए साइंटिस्ट ने रिसर्च की, और साइंटिस्ट ने रिसर्च की, उसके बाद में एक्सप्लेन किया. A large number of forces occurred in nature, large number of forces up to infinite. वो फिजिक्स आज तक भी एक्सप्लेन नहीं करती कि लार्ज नंबर ऑफ कितने नंबर हैं भाई, और जब पता नहीं है तो अप टू इनफाइनाइट. तो हमारे नेचर में इनफाइनाइट फोर्सेज पाए जाते हैं, उनको फिजिक्स आज भी एक्सप्लेन नहीं करती. फिर इससे तो स्टडी होने में हमें प्रॉब्लम आने लगी. तो साइंटिस्ट ने और रिसर्च की, फिर एक्सप्लेन किया कि फोर्सेज तो लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज अकर्ड इन नेचर अप टू इनफाइनाइट फोर्सेज हैं. तो फिर साइंटिस्ट ने और रिसर्च की, तो फिर एक्सप्लेन किया फोर्सेज अकर्ड इन नेचर इन फॉर्म ऑफ पेयर्स, इन फॉर्म ऑफ कपल्स. आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट. हमारे नेचर में बहुत सारे फोर्सेज हैं, तो फोर्सेज कपल्स पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, अकेला फोर्स, सिंगल फोर्स नहीं पाया जाता. मींस आइसोलेटेड फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट. उसका सबसे बेटर एग्जांपल है, यू नो दैट फ्रॉम 11th class, a body placed over to the surface of another body, weight force vertically downwards due to gravity, reaction force denoted by capital R or N, both forces having same magnitude and opposite direction. तो हमारे नेचर में जितने भी फोर्सेज पाए जाते हैं वो कपल फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं. आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल नहीं है. तो फिर साइंटिस्ट ने और रिसर्च की, तो एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ये है, वीकेस्ट फोर्स ये है, लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज अप टू इनफाइनाइट बिटवीन देम. तो इसके लिए एक्सप्लेन किया, मैं केवल आपको समझा रहा हूं. न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. हमारे नेचर का न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है. द न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर with respect to another, but its working range is very short. 10 raised to the power minus 15 मीटर. इसके नेम से ही क्लियर है बेटा, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में ही वर्क करेगा, और न्यूक्लियस का साइज रेडियस किस ऑर्डर में होता है, 10 raised to the power minus 15 मीटर. तो न्यूक्लियर फोर्स नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, लेकिन उसका वर्किंग रेंज कितने डिस्टेंस तक वर्क करता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, 10 raised to the power minus 15 मीटर. Gravitational force is the weakest force in nature with respect to another forces. तो gravitational force हमारे नेचर का weakest force है, but its working range is very large up to infinite. That's clear. Okay, क्या मेंशन भी है इसमें. नेक्स्ट, अब हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा एक्सचेंज ऑफ चार्ज बिटवीन टू बॉडीज in form of electrons. Why? Explain it. इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, अब एक प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन करना है. तो ऑल स्टूडेंट्स लिसन टू मी एंड कंप्लीटली फोकस ऑन बोर्ड. You know all materials consist with large number of small particles. These particles are called
atom, atoms. These particles are called atoms. In any atom, proton and neutron, are tightly bounded, with nucleus, due to nuclear force. So proton and neutron are not removed from nucleus. न्यूक्लियस से रिमूव नहीं कर सकते. बट electrons are continuously revolving around the nucleus, particular orbits. So electron, बेटा, nuclear force does not exerted on electrons. इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा बेटा. So electrons are removed from its orbit, means that exchange of charge between two bodies is always in term of electrons. इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं होगा. तो देखो, आप कंफ्यूज ना हो. कई बार केमिस्ट्री में आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, अगर ये न्यूक्लियस से इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा. तो केमिस्ट्री में आपको न्यूक्लियर अट्रैक्शन के लिए कहा जाता है. हम फिजिक्स में न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं. न्यूक्लियर अट्रैक्शन बेटा, इसमें कौन से पार्टिकल हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन का नेचर क्या होता है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो इसमें कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है? नेगेटिव. अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स. तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा. तो केमिस्ट्री में इस अट्रैक्शन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहा जा रहा है. हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से आउटसाइड है तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, तो इसको अपने ऑर्बिट से रिमूव कर सकते हैं. और रिमूव कर सकते हैं तो वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं. आप ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म में देख, H+Cl- ये कब पॉसिबल है? जब हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया. दैट्स क्लियर बेटा? गॉट इट? हाँ बेटा, देखिए पॉजिटिव चार्ज. तो अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है, वी गेट टू कॉन्सेप्चुअल कंडीशंस. exchange of charge between two bodies in form of electrons. First point, exchange of charge between two bodies form of electrons due to friction. किसकी वजह से होगा? फ्रिक्शन की वजह से. तो देखिए, इसके लिए हम बात करें पहले. डिस्कवरी ऑफ चार्ज बाय साइंटिस्ट थैलस, बट क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन. फिजिक्स में ये चीजें कभी नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन हम स्लाइटली आपको एक्सप्लेन करके चलते हैं. बिकॉज आपने देखा होगा यूनिट्स में हम साइंटिस्ट का नेम यूज करते हैं. सबसे बेटर एग्जांपल है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन बाय साइंटिस्ट नेम. तो क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज इन टर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन. नाउ पॉजिटिव चार्ज आप सीख चुके हैं. चार्ज का ट्रांसफर किस फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रॉन फॉर्म में. और ये किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से. तो साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं केवल आपको समझा रहा हूं. ओके बेटा? तो देखिए, when a body loses of some electron due to friction, loses of some electron due to friction. So you know that with each electron 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb नेगेटिव अमाउंट लूज होगा, नेगेटिव अमाउंट रिमूव होगा, नेगेटिव अमाउंट बाहर निकलेगा, तो नेगेटिव अमाउंट डिक्रीज होगा, और नेगेटिव अमाउंट डिक्रीज होगा तो पॉजिटिव अमाउंट डिक्रीज होगा. तो बॉडी एक्वायर्स सम पॉजिटिव चार्ज, और बॉडी पॉजिटिवली चार्ज. लाइक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटा, तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. अगेन लिसन टू मी, व्हेन अ बॉडी लूजेज ऑफ सम इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्रिक्शन, then body acquires some positive charge or body is positively charged. Next देखिए बेटा, consider
a body is electrically neutral, a body is electrically neutral, but body has some mass, कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज ऑन बॉडी, लेकिन मास तो होगा। फ्रॉम दिस बॉडी, बॉडी सेम है, फ्रॉम दिस बॉडी सम इलेक्ट्रॉन लूजेज, तो कौन सा चार्ज आएगा बेटा, प्लस, विद ईच इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इतना मास भी तो लूज होगा, इतना मास भी तो रिमूव होगा, इतना मास भी तो बाहर निकलेगा, तो मास इसका चेंज हो जाएगा बेटा, तो डिनोटेड बाय m2, चेंज हो गया। चेंज के 2 ही ऑप्शन होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मास भी बाहर निकला, तो मास क्या होगा बेटा, डिक्रीज, m2 इज लेस देन m1। प्रैक्टिकली देख लें, हम अपने सिर में से एक बाल को निकाल लें, तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स योर मास इज स्लाइटली डिक्रीज। आप ऐसा नहीं कहेंगे सर ऐसे भी होता है, बिकॉज फिजिक्स एक्यूरेसी को शो करता है, तो मास आपका डिक्रीज होगा, स्लाइटली, थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो व्हेन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, then mass of body is slightly decrease. So change in mass, change form of decrease, mass of body। तो देखिए बेटा, डेल एम, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कितना चेंज होगा, me, 2 इलेक्ट्रॉन 2me, 100 इलेक्ट्रॉन 100me, n इलेक्ट्रॉन nme, where n number of electrons, me mass of electron। तो देखिए इन सिंपल वे, अगर बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज जनरेट करते हैं तो उसका मास डिक्रीज होगा स्लाइटली, बिकॉज दिस अमाउंट वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट्स क्लियर। अब देखिए बेटा एग्जांपल नंबर सेकंड, a body loses of 800 electrons, what is the nature of charge on body and determine the change in mass of body, तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेज बाय बॉडी 100, तो नेचर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे बेटा, नेचर कौन सा होगा, प्लस, आपको हम पढ़ा चुके हैं। व्हेन बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो नेचर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। चेंज इन मास, यू नो दैट चेंज इन मास, चेंज फॉर्म ऑफ डिक्रीज, अभी बताया बेटा, डिक्रीज मास ऑफ बॉडी, डेल एम इक्वल टू एन इंटू एम, एन आपको गिवन है बेटा 800, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये क्या हुआ बेटा 800 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 800 20 मीन्स 10⁻² -31, तो 10⁻⁻29, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 72.8, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर 1 फिगर, तो 1 पावर यहां से रिड्यूस करेंगे, 7.28 इंटू 10⁻⁻28, दैट्स क्लियर, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, अ बॉडी लूजेज 2 इंटू 10⁻10 electrons, what is the nature of charge on body and determine the change in mass, सेम क्वेश्चन है। तो लूजेज इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा 2 इंटू 10⁻10, when body loses of some electron acquires some positive charge, the nature of charge on body positive। change in mass, so you know that from basic theory, when body is positively charged then mass of body is slightly decreased, so change in form of mass of body, so del m equal to n into me, you know that mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31, okay beta, the number of electron 2 into 10⁻10, 9.1 into 10⁻⁻31, देखिए -31 10, तो 10⁻⁻21 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 18.2 kg, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे आफ्टर 1 फिगर टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 पावर रिड्यूस करेंगे 1.82 into 10⁻⁻20
kg. That's clear? Okay, got it? मुझे लगता है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये बेसिक है, अगर बेसिक आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, और उसको बिल्डअप करना आप लोगों की ड्यूटी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, determine the change in mass of ion H plus. Determine the change mass of ion H plus. तो देखिए आयन आपका क्या है बेटा, H plus. You know that H plus. How many number of electron loses? How many number of electron loses by hydrogen ion? 1 electron. कितना लूज करेगा बेटा? 1 electron. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1. Nature of charge on ion positive. You know that from basic theory, when body is positively charged, then mass of body is slightly decreased. So change in mass, change किस फॉर्म में होगा बेटा? डिक्रीज फॉर्म में होगा. In mass of ion, del m equal to n into me. n आपको क्या गिवन है बेटा? 1. me you know that 9.1 into 10 raised to the power kg. ये कितना हो गया बेटा? 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. That's clear? Okay, got it. Next, find out the change in mass of helium 2 plus. Helium 2 plus. So how many number of electron loses? 2 electron. Sorry, 2 electron. So change in mass, change फॉर्म ऑफ डिक्रीज क्या होगा बेटा? डेल एम इक्वल टू एन इंटू एमी. एन आपको गिवन है 2, एमी 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31, मल्टीप्लाई बाय 2, 8.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31. डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे बेटा, 1.8 10 रेज़ टू द पावर माइनस 30 kg. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन आयन. वेरी सिंपल मच्छर क्वेश्चन है. अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक प्लेटफॉर्म स्ट्रांग है, तो हर चीज आपको मच्छर लगेगी, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, इंटरेस्टिंग होगा, सिंपल होगा. वैल्यू ऑफ चार्ज, यू नो दैट आयन H प्लस, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेज बाय हाइड्रोजन? 1 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए बेटा? 1. तो n इक्वल टू 1. वैल्यू of charge, you know that charge on 1 electron E, 2 electron 2e, 3 electron 3, 10 electron 10e, 100 electron 100e, n ne. E charge on electron 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. So Q equal to 1 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. तो देखिए 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. That's clear? Okay. Next, find the value of charge on helium 2 plus. Helium 2 plus. How many number of electron loses? 2. कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा? 2. The value of charge Q is equal to Ne, 2 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. 3.2 to 10 raised to the power minus 19 coulomb. That's clear? तो मुझे लगता है, आई होप आप सभी को यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट लेक्चर में आप समझेंगे, टुमारो क्लास में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. आज आप बेटा सभी ये तैयार करें अच्छे से, तो कल आपको और भी अच्छा लगेगा, और भी बेटर फील करेंगे, बहुत आनंद आएगा. ओके, थैंक यू.